not started the recording. Okay. Now, conditional statement and looping has these three particular things: initialization, condition, and increment. Initialization means this is the starting point of the loop. Condition means this is ending point of the loop. इंक्रीमेंट मीन स्टार्टिंग टू एंडिंग जाने के लिए मुझे जो इंक्रीमेंट मतलब धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा, दैट इज द थिंग इंक्रीमेंट. यू हैव टू do from starting point to initial. You have to go from starting point to ending point by increasing some variable. That is the thing increment does. So initialization, condition and increment के बाद हम लोग ये चीज सीखे थे कि टाइप ऑफ लूप क्या क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. एंड again I was already told that there are three loops. Please specifically try to understand. Whenever anybody asks to you that how many types of loops are there, your answer must be two: entry control and exit control. Your answer must be two: entry control and exit control. But anyone, if anyone have the answer how many loops are there, your answer must be three loops are there. That is for loop, while loop and do while loop. But three loops in C specifically you have to tell. In C language you have three loops only, but other languages have one more loop. एक और loop है other language, बहुत सारे language में एक और loop है, do until करके एक loop है. But still this is not for C में ये बस यही तीन तरह का loop है. So अब तुमको ये एक प्रोग्राम को मैंने बता रहा था, एक ही प्रोग्राम को तीनों लूप तरीके से हम लोग बता रहे थे. यस इट इज एक ही प्रोग्राम को प्रिंटिंग 99 तक मैं प्रिंट कर रहा था, 0 to 99 तक प्रिंट हो रहा था, हेलो प्रिंट हो रहा था. एंड वही लूप हम वही तीनों प्रोग्राम से हम लोग करके दिखा रहे थे. तो फॉर से हो गया था, वाइल से हो गया था, डू वाइल से मैं कर रहा था लास्टली. और उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ था, आई थिंक सिग्नल के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया था. So that's why I am okay. Now I'm again opening that particular thing. क्या प्रोग्राम का नाम दिए थे याद है? टेस्ट में ही कर रहे थे क्या? Okay. See, here it is the do while loop pattern. Again I am repeating that. For while and do while I am repeating that. For I equals to 0, I less than 100, I plus plus. Here you must not give 0, I plus plus, and here you must not give initialization. Initialization is in here, increment is also here. So मुझे यहाँ पे 0 और यहाँ पे increment देने का कोई जरूरत नहीं है. While हट जाएगा. So this is the way to write for loop. Everything okay? Yes. Everything okay? Everyone, this is okay with you? This is initialization. Yes, sir. This is condition and this is increment. So कोई एक चीज को बार बार तुम्हें रिपीट करवाने के लिए तुम्हें इस चीज का जरूरत पड़ेगा, इस लूप का जरूरत पड़ेगा. दिस इज इनिशियलाइजेशन. 0 से इनिशियलाइज किया गया, इस कंडीशन को चेक किया गया. 0 is less than 100. Yes, this is true. It will go to the inside value. It will print 0 hello, and again it will go to the increment. Then again condition check. Again this printing. Again increment. Condition check. Printing. Increment. Condition check. Printing. Increment. Condition check. Printing. Again increment. Condition check. Printing. In this way, this loop is moving. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Now while loop को क्या किए थे? ये हट जाएगा, इंक्रीमेंट भी हट जाएगा. ओनली कंडीशन here you should give while here is the increment part. Now again see how this loop is moving.
दिस इज इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक, इफ दिस इज ट्रू इनसाइड this printing increment, again condition check, printing increment, condition check, printing increment, condition check, printing increment. In this way this loop is moving. Same way similar task, only representation technique is different. Only representation technique is different. Same task it will perform, same thing it will doing, only representation technique is different. Is the thing clear to you? Everything, everyone, this thing is Yes, clear to you? sir. This Yes, is sir. while loop. Now I am proceeding towards the do while loop. Let's stick do while में क्या होगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन यहां पे कर देंगे do, it will do the task, it will increment, lastly it will check, condition, semicolon. Now you try to see this initialization again similar way. उसके बाद फर्स्ट वन do, फर्स्ट do the task, टास्क हो गया, मतलब पहले 0 0 हेलो प्रिंट कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ to I becomes 1, again it will go to the here while 1 less than 100, yes it is true, then again it will move to the this, again increment, again condition check, again increment, do the task, increment, and then again condition check, and finally when it will move, देखो अगर 99 तक ये क्या करेगा, 99 less than 100 it will go inside, again it will print the value, I becomes 100, I becomes 100, so I less than 100 less than 100, that becomes false, it will exit the loop. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes. Is the thing clear to you, everyone? Now try to Yes, try to execute it. Compiling, it is 0, no error, no warning. See 99 hello, it is running. Yes, It is visible. Is it visible? visible. Yes, sir. So 99 देखो 99 hello तक print हुआ. So that is same thing it will be. Now you tell, now you can understand, very carefully try to understand. ये 3 लूप तो हो गया तुम्हारे सामने, 3 लूप यहां मैंने दिखा दिया. अब ये तीनों लूप में से तुम लोग बोलो which one is entry control, which one is exit control. Sir, while All entries control, sir. कौन? door For Sir, while और sir, while क्या है? is- और एंट्री कंट्रोल है कि एग्जिट कंट्रोल है? एंट्री do कंट्रोल का ex- मतलब फॉर Entry एंट्री control. कंट्रोल है कि एग्जिट कंट्रोल है? entry, sir. एंट्री both sir. एंट्री कंट्रोल. क्यों एंट्री कंट्रोल? तुम खुद बोलो. Condition से शुरू नहीं कंडीशन होता पहले ही चेक हो रहा है, कंडीशन स्टार्टिंग पे चेक होता है. स्टार्टिंग पे ही चेक हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल. व्हाइल, अब बोलो व्हाइल एंट्री कंट्रोल या एग्जिट अभी कंट्रोल? entry control, sir. एग्जिट व्हाइल Entry control, sir. व्हाइल एंट्री Entry, sir. कंट्रोल. entry while entry control loop, while is entry control loop, because while में क्या हो रहा था, तुम देखो while में क्या हो रहा था, यहाँ पे while कंडीशन था, so I While less than initialize हो रहा था, उसके बाद तुरंत चेक हो रहा था. If this is true, then it will happening. Yes, sir. This is entry control loop. So while is also entry control loop. Do while, Exit control. Exit control. exit exit control loop. Is the thing clear to you? Can you clearly differentiate what is entry control loop and what is exit control loop? Exit control Yes, का sir. मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि अब सिंपली एक और डिफरेंस अच्छा से ध्यान देना. एग्जिट कंट्रोल लूप में एक बार ये प्रिंट होगा ही, बट ऐसा चीज नहीं है एंट्री कंट्रोल में. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बोला समझने का कोशिश करो. यहाँ पे i इक्वल्स टू तुमने अगर 0 दिया है, ये i इक्वल्स टू 100 दिया है शुरू में ही,
क्या होगा? सर एक बार प्रिंट होगा, एक बार Print प्रिंट करेगा। उसके करेगा। बाद चेक करेगा। एक बार तो प्रिंट होगा प्रिंट ना, करेगा उसके बाद चेक करेगा। एक बार प्रिंट होगा ना, यस सर। एक बार प्रिंट होगा, ये 100 के लिए प्रिंट हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद ये कंडीशन चेक करे, ये तो ज्यादा था, उसके बाद उसको करने के लिए कुछ है नहीं, एक बार ये प्रिंट होगा ही। प्लीज सी दिस, सी, एक बार 100 हेलो प्रिंट होगा ही होगा। एम आई क्लियर? यस सर। बट अगर शुरू में यहां पे व्हाइल दे दो तो देखो तो क्या हो रहा है, प्रिंट होगा या नहीं होगा? नो नहीं सर, होगा नहीं होगा सर। Exit। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, पहले ही कंडीशन होगा। क्योंकि पहले पहले ही ही कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो रहा है, देखो नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। So that is the thing that you have to understand कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में डिफरेंस क्या है, ये आता है एग्जाम में। एंट्री कंट्रोल लूप में, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है पहले तो बताना है तुम्हें। एंट्री कंट्रोल में शुरू में कंडीशन चेक होता है, एग्जिट कंट्रोल में लास्ट में चेक होता है। एंट्री कंट्रोल में एक बार भी अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी लूप नहीं घूमेगा, बट एग्जिट कंट्रोल में मिनिमम एक बार लूप घूमेगा ही घूमेगा। Yes. Is the thing clear to you? यस सर। Now, Yes. now सर फॉर लूप कौन सा होगा? for loop entry सर control फॉर loop, लूप, entry फॉर control लूप कौन में आएगा? entry control, because वो तो शुरू सर में ही, एंट्री कंट्रोल लूप। हाँ एंट्री कंट्रोल में क्या हो रहा है, शुरू में ही कंडीशन Yes. चेक हो रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत कंडीशन चेक, उसके बाद लेट्स चेक इट फॉर i इक्वल्स टू 100, शुरू में ही मैंने दे दिया। उसके बाद i लेस देन 100, i प्लस प्लस, डन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, नहीं कर रहे रन? Condition false. इज द थिंग क्लियर टू यू? समझा पाया? यस सर। यस सर। Okay, now my turn is, what is the way to write algorithm and flowchart for this particular thing? Let's try to understand. What is the way to write algorithm and flowchart? देखो if else का algorithm flowchart तुम लोगों को श्योरली पता है कि हाँ क्या कैसे लिखा जाता था, बट इसका एल्गोरिथम फ्लोचार्ट कैसे लिखा जाएगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेप वन एल्गोरिथम लिख रहे हैं, मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम राइटिंग द एल्गोरिथम, एंटर और initialize I, done. This is your first line. Step 2, step 2 में क्या होना चाहिए बोलो? लिखने का तरीका बहुत अच्छा से ध्यान से समझने का कोशिश करो। कंडीशन चेक। यहाँ पे कंडीशन देना होगा, हाँ उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए,
कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट होना चाहिए, यस नो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो बहुत अच्छा से ध्यान से समझने का कोशिश करो ये लाइन। रिपीट स्टेप 3 for or while anything, you can write for while, दोनों में से कोई भी चल सकता है। while I less than 100, यहाँ पे और भी तुम लिख सकते हो, इनिशियलाइज I by 0, you can do this. This is your line. Repeat step 3. स्टेप 3, अब तुम्हें स्टेप 3 में जाके ये लिखना होगा, स्टेप 3 में जाके लिखना होगा प्रिंट Am I clear to you? Yes, sir. ट्राई टू रिकॉग्नाइज मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखो रिपीट स्टेप 3। अब स्टेप 3 में जो तुम्हें जो काम करना होगा, इस लूप के अंदर जो भी चीज है वो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इन स्टेप 3। Yes, sir. This is the way to write algorithm for loop. Okay, and how to write flowchart. Please try to understand again. Flowchart. पहले क्या होगा? Starting. Start. उसके बाद Input. इनपुट। Input. यहाँ पे इनपुट होगा? No sir, उसमें I लिखते नहीं होगा। यहाँ पे आई नहीं होगा इनपुट, इनपुट कुछ है ही नहीं। सिंपल। यस इट इज। समझ में आया नहीं आया बोलो। Yes, sir. This Yes, is a sir. this is a processing. This is a processing. So this is simply I equals to 0. You have to put I equals to 0 here. Next what to do? Check diamond. Check diamond. See here, condition always I less than 100. That is the condition. That is the condition you are putting. Now see, अगर ये हुआ तो क्या होगा? Loop में Loop run print ये यहां से जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे? अगर ये हुआ तो क्या प्रिंट होगा? Hello. सही लिख रहे हैं? सही बना रहे हैं? Out ना होगा सर, तो output बोलो एवरीवन। मैं चाह रहा हूँ एवरीवन। मैं हाँ सर, जान सही है। सही है। सिंबल सही है। नहीं सर, Print में hybrid चाहे parallelogram. हाँ तब हाइब्रिड से तब तुम्हें बोलना होगा ना, तुम्हें बोलना होगा। तुम सही है बोल रहे हो। You have to be conscious. ये पैरेललोग्राम या हाइब्रिड दोनों में से प्रिंट का स्टेटमेंट। तो प्रिंट डन। ओके डन। सो यहाँ पे
यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और भी ये यस है, नो हुआ तो बाहर हो जाएगा। तो कैसे, ये तो केवल उसी को कैसे लिखेंगे, इन हो जाएगा सर, इन लगा। उसको कैसे लिखेंगे, नो को यहाँ पे तुम्हें समझना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। क्या हो रहा है बोलो, ये नहीं हुआ तो इंड हो जाएगा, ओवेल में इंड। टर्मिनेट हो जाएगा। एंड में जाएगा ना, और रिपीट कहां पे हो रहा है फिर बोलो, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये सिंबल रिपीट हो रहा है, यस yes, यस सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Am I clear this algorithm flowchart? Yes, sir. यस सर। वेरी क्लियर, यू हैव टू बी क्लियर, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई भी इस लूप का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट इसी वे से तुम्हें क्रिएट करना है। Is the thing very clear to you? This is the flow chart for this problem, जो प्रॉब्लम मैंने किया था 100 टाइम्स। ये इसको प्रोग्राम को इनिशियलाइजेशन, देखो इनिशियलाइजेशन में रिपीट नहीं है, रिपीट है यहाँ से, ये ट्रू है, प्रिंट हेलो अगेन हेयर कंडीशन। अब तुम बोलोगे सर इंक्रीमेंट कहाँ है, yes, sir. इंक्रीमेंट तो किया नहीं है मैंने, बोलना चाहिए ना, इंक्रीमेंट तो करना चाहिए तुम्हें। क्या होगा बोलो, ये तो होगा ना जी। Yes. So this is actual your flow chart. This is your algorithm, this is your flow chart. उसको मैंने भूल गया था ये इंक्रीमेंट वाला। Is that thing clear to you? बोलो हाँ या ना। Now this thing is okay. Yes, sir. यस सर। Yes. This is the algorithm written style and flowchart written style. Please try to understand, और जो भी algorithm flowchart for loop का बनेगा वो इस way से भी बनेगा, ये इस way से ही बनेगा। जो भी algorithm flowchart of this loop प्रोग्राम का जो भी algorithm flowchart होगा वहां पे तुम्हें इस कंडीशन में इसी way से तुम्हें algorithm flowchart लिखना होगा। Am I clear? Very clear, मैं आगे बढ़ूंगा तभी, Sir. अदरवाइज
मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं, अगर तुम्हें कहीं पे समझ में नहीं आया बोल सकते हो, कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। सर नो वाला कंडीशन और के लिए सेम होगा सर? हाँ एक बार फिर से, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया कर लूं। सर बोल रहे थे सर, मतलब सबके लिए लूप जैसे कि कहाँ चले गए, निकल गया कहीं से। अच्छा कोई ये एक और कोई क्वेश्चन कर रहा था, प्लीज प्लीज टू कंटिन्यू। हाँ बोलो। वो बोला सर वाइल और डू के लिए ये सेम होगा, मतलब सबके हाँ लिए सेम होगा, ये सेम होगा, चार्ट कोई भी लूप यूज करो, दिस इज द सेम सेम थिंग। देखो लूप और देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम तुम्हें ये चीज दिखाना है। फॉर लूप और वाइल लूप का सेम है ही, पैटर्न ही सेम है, सिर्फ डू वाइल का पैटर्न थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अलग है, एक्चुअली थोड़ा सा अलग है ये डू वाइल और बाकी दोनों से, वाइल और फॉर से। डू वाइल का एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे तुम्हें तुम्हें ये जो स्टेप्स मैं लिखा ना, ये स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम होगा, दिस स्टेप्स विल बी द अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम के हिसाब से दिस स्टेप्स होगा। ये जो i लेस देन 100 ये कंडीशन प्रोग्राम के ऊपर बेस करके होगा, ये प्रोग्राम के बेस करके होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे तीन मान लो तीन चीज है, तीन अलग अलग इसमें तुम्हें सिंबल में दिखाना होगा। हो सकता है तुम यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, उसके बाद एडिशन कर रिजल्ट दे रहे हो, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे इस पैरेलल सॉरी इस रेक्टेंगल में, उसके बाद आएगा ये चीज, तो ये चीज इधर उधर हो सकता है। एम आई क्लियर टू यू? ये अकॉर्डिंग टू द सिंबल होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम होगा। बट वे टू राइट रिपीट करने के लिए ये नीचे से फिर जाके यहाँ पे उस कंडीशन के ऊपर जोड़ना होगा, दिस इज रिपीटेशन सिंबल। अब बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में जो भी हो रहा है वो तुम्हें अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम तुम्हें दिखाना है। एम आई क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर पाया? बाकी लूप को दिखाने के लिए यही सिंबल यूज होगा, कोई भी लूप हो। सर पूछ रहे थे सर नो वाला जो कंडीशन दिए हैं बोला नहीं भी देंगे तो इंड नहीं होगा प्रोग्राम ना, मतलब प्रोग्राम जैसे नहीं होगा बात नहीं है, ये तुम्हें फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में दिखाना ही होगा उस चीज को, नो को, बिकॉज तुम्हारा प्रोग्राम देखो हो सकता है तुम्हारा प्रोग्राम में एक लूप के बाद एक और कंडीशन हो, हो सकता है लूप के बाहर आने के बाद तुम उस लूप से साम निकल रहे हो, साम निकल रहा है, ये एवरेज निकल रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एवरेज ऑफ एन नंबर्स अगर करोगे फास्ट एन नंबर, तो तुम्हें लूप से एडिशन कर लेना होगा, एडिशन करने के बाद निकलने के बाद तुम्हें एवरेज कैलकुलेट करना है, जो साम निकल के आया उससे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ, एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है। अब सिंपली यह देखो लूप के बाहर आके एक और स्टेप तुम्हें करना पड़ रहा है, वो कहां दिखाओगे? अगर नो दिखाओगे तो, नो नहीं दिखाओगे तो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? तो अगर नो नहीं होगा तो लूप के बाहर कोई भी अगर चीज कर रहे हैं, लूप के बाहर कोई भी अगर चीज मैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम कर रहा हूं, उस चीज को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो यस नो रहना जरूरी है। यस हुआ तो रिपीट होगा, रिपीट होते रहेगा, उस सिंबल्स को देखोगे, उस सिंबल्स को दिखाओगे कहां से कहां तक रिपीट हो रहा है, इसको दिखाओगे इसी तरह। और अगर नो हुआ तो क्या क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे लंबा भी बन सकता है, ये एंड पे गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। अगर ये हो सकता है इसके बाद कुछ काम तुम कर रहे हो तो यहाँ पे वो सारी चीज दिखाना होगा। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। मैं एक दो और दिखा करवाऊंगा प्रोग्राम के साथ, ये तो तुम्हें और भी चीज क्लियर हो जाएगा, और भी एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर, दिस प्रोग्राम फॉर दिस प्रोग्राम इट इज ओके, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। बोलो यस सर। क्लियर है? मैं एक और प्रोग्राम के लिए मैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाऊंगा, तब तुम्हें क्लियरली इस चीज को एकदम विजिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है?
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे सी, अगर बाय चांस किसी ने ये नहीं दिया, क्या होगा? तब प्रोग्राम नहीं रन करेगा, इनिशिएशन चलो नहीं देखते होगा। हैं। उस समय कॉलम मेरे को बताते हैं। सर कितना तक जाएगा वो नहीं पता चलेगा सर, मतलब लेट्स सी, कितना होगा। लेट्स सी, एरर वार्निंग नहीं है, दैट मीन्स प्रोग्राम रन करेगा, हाँ या ना? सर स्टार्टिंग पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग पता नहीं चलेगा तो क्या Yes, होगा? sir. तो क्या होगा? ये स्टार्ट होगा सर, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते आइए तो चलेगा ये। क्या हुआ? ये देखो तो, ये रैंडमली सही एक वैल्यू लिया है, प्रिंट देखो रैंडमली एक वैल्यू लिया है 40 के बाद से ये 100 तक रन कर दिया। देखो तो, लिया। यस दैट इज रैंडम वैल्यू। आई के अंदर कुछ भी वैल्यू तुम दे सकते हो। अब यहाँ पे तुम देखो कहाँ चेंजेस हो रहा है, कंफ्यूज मत करना। मैं यहाँ पे आई को 0 दे दिया, कैन इट रन? यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियलाइजेशन यही पोजीशन में देना है ऐसा नहीं है, बट ये सिंबल देना चाहिए तुम्हें। मतलब जो ये सेमीकोलन फर्स्ट प्लेस इज फॉर, बट ये सेमीकोलन हटा दोगे ना तो ये एरर शो करेगा। लेट्स सी, इट विल शो द एरर। बट अगर ये सेमीकोलन दे दिया तुम, दैट मीन्स ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स तुमने किया नहीं है। सी, इट विल नॉट गिव एनी एरर। दो बार सेमीकोलन की क्या जरूरत पड़ा है यहाँ पे? तो वैसे भी रन करना चाहिए। ये नहीं, फॉर का लिखने का तरीका ही यही है, ग्रामर ही यही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम आई एम ए गुड बॉय, एम लिखने का क्या जरूरत है? आई ए गुड बॉय समझ में तो आ रहा है, क्या जरूरत है एम लिखने का? क्यों लिखा जाता है बोलो? सेंटेंस नहीं बने, ये ग्रामर है उस चीज करेक्ट नहीं का, होगा। उस चीज का ग्रामर है। दैट मीन्स ये नियम है। फॉर के अंदर 2 सेमीकोलन तुम्हें देना है। 2 सेमीकोलन के पहले वाला होगा इनिशियलाइजेशन के लिए, बीच वाला होगा कंडीशन के लिए, लास्ट वाला होगा इंक्रीमेंट के लिए। अगर 2 सेमीकोलन तुम नहीं दोगे, इट विल ट्रीट एज ए रॉन्ग ग्रामर। क्या मैं समझा पाया? Is a language, please try to understand. This is a language. Language means there must follow some grammar, some rules. See, it will run, it will not give any error and it will run accordingly. See, ये 0 से ही स्टार्ट होगा और 99 पे ही जाके खत्म होगा। No any problem. Now प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एक बार एंडिंग वाला कंडीशन भी हटा के बना दीजिए तो। कौन सा एंडिंग कंडीशन? आई लेस देन 100 आ रहा है वहां, मैं आऊंगा ही उस पॉइंट पे, मैं आऊंगा ही। मैं इसको अब हटा दिया, क्या होगा? रन करना चाहिए? नहीं सर, एरर देना चाहिए। एरर देना चाहिए? नो, इट विल अगेन नॉट गिव एनी एरर। खुद को